Okay, now we will continue with next topic 5.1.3.2, that is डायनामिक मेमोरी पार्टीशनिंग। डायनामिक का ही मतलब क्या है कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी होता है। डायनामिक मतलब चेंजिंग। डायनामिक मीन्स चेंजिंग। इन प्रीवियस दैट इज द स्टैटिक मेमोरी पार्टीशनिंग, हम लोग ने क्या किया था, जो कुछ भी मेमोरी अवेलेबल थी, दैट इज द पार्ट ऑफ अ मेमोरी अदर देन द मॉनिटर which was used for the operating system, we have allocated to the different processes, but it was done statically. statically मतलब क्या, हम लोग ने उसे फिक्स कर दिया था between the different types of a slot. Okay, and there was two types of allocation. In first there was allocation as there are different queues for different segments. Example was q1, q2, q3, something like that, that is q2, 3 and 6. In another example we have seen only one queue for all the segment, but problem in that was if one segment is free but as the other processes are in a queue, so they have to wait till the processes in front of them must be submitted to the memory. And there is also problem of internal and external fragmentation and all that. To overcome or another type of a partitioning is dynamic memory partitioning. इसमें क्या होता है, with this type of a partitioning we assign the memory or we partition the memory dynamically. Dynamically means what? Not fixed, not statically. देखो कैसे होगा कि with the partition, fixed partition, we have to deal with the problem of determining the number of size and partition to minimize internal and external fragmentation. इतनी बड़ी लाइन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि अगर मैं स्टैटिक पार्टीशनिंग यूज़ करता हूँ तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अगर इफ वी यूज वेरिएबल पार्टीशनिंग देन पार्टीशन साइज में वेरी डायनामिकली. अगर डायनामिक पार्टीशनिंग यूज करता हूँ तो पार्टीशन में फिक्स नहीं कर देता. देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अ पार्टीशन, one is for monitor, another is for user, and what is available for user is dynamically allocated to the processes as the processes arrive, execute and terminates and makes the memory allocatable to the other processes. So consider the example. ये देखो कि यहाँ पे दिया गया है जॉब क्यू में क्या है, जॉब 1 memory requirement 60K, time is 10. This is little bit confusing, we will repeat twice, or if you need we will also repeat more than 2 times. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को एक फिगर 5.7 में एक पहली डायग्राम प्रोवाइड की गई है जो है 0 to 40, that is monitor, that is not of our use. After 40 to 256, that is you can say by simple mathematics 256 minus 40, that is 216K available for user memory. On a right hand side there is a job queue. वो job queue में क्या है, different job है, job 1 2 3 4 5. मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, जॉब 1 की 60K, जॉब 2 100K, जॉब 3 30K, जॉब 4 70K, जॉब 5 50K. टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोसेस, दैट इज जॉब 1 10, जॉब 2 5, जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 5, सो ऑन. व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड के जैसे भी प्रोसेस डायनामिकली अलोकेट होती है वैसे ही कंप्लीशन भी होगा उसका. लेकिन कंप्लीशन डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है,
तो कंप्लीशन डिसाइड करने वाला फैक्टर है आपका एग्जीक्यूशन टाइम। सो बुक आपको मैं पहले से ही बोला हूँ चाहिए आपके सामने, और इसीलिए देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बुक रहेगा तो आपको सिंपल होगा। ये डायग्राम देखो, सिंपल है। सबसे पहले इन ऑल द प्रोसेसेस दैट इज इन ऑल द डायग्राम देयर इज अ upper part allocated for monitor, that is 0 to 40. 5.8 is the example of memory allocation and job scheduling for MVT, that is the variable allocation. So consider the A only. Now 0 to 40 is for monitor. Now from previous chart, job 1 requires 60K and 60K is available, that is 40 एंड 60, दैट इज 40 के आगे आपका 60 मतलब क्या हो जाएगा टोटल 100। तो जॉब 1 वहाँ पे अलोकेट हो गया। नाउ जॉब 2 100 to 200, इसका मीनिंग ये क्या है, 100 पे वो ख़त्म हुआ था, उसके आगे 100 की रिक्वायरमेंट है जॉब 2 के लिए। मतलब तो जॉब 2 के लिए कितना लगा, ओनली 100 बस। बट प्रीवियस 100 प्लस न्यू 100 दैट इज द 200, दैट इज अलोकेटेड फॉर जॉब 2। Then consider job 3, it requires 30K. Is it available? Yes, 200 plus 30, that is 230K. We are having up to 256. Now consider job 4, that requires 70K, but dash line represents the empty location. 230K and 256K, the difference is of only 26K. So it means that 26K is only remaining. So I cannot assign this 26K to 70K memory. Now I have to wait. Now consider the last column of the previous chart. This is why it is given. Now check job 1 and job 2 and job 3 are already allocated, but which job will get finished first, this we have to decide, and this is decided by the last column, that is the time requirement. So job 2 is the job which will get over the first, that is its time period is 5. So the location number 3, that is here job 2 terminates and arrow is indicated. Consider this job 2 terminated. So after now what will happen, the dash indicating line, that is from 100 to 200 is free as job 2 has terminated. So consider the previous page, that is job number 4 which is requiring 70K of a memory. तो 70K ऑफ अ मेमोरी पहले मेरे पास स्पेस अवेलेबल थी क्या, नहीं थी। 230 से लेकर 256 नहीं। नाउ 70K इज अवेलेबल बट वेयर, आफ्टर 100। सो रिफर डायग्राम सी। यहाँ पे देखो 100 के बाद जॉब अलोकेटेड जॉब नंबर 4 अवेलेबल हो गई 100, बट अलोकेट कितने की हम लोग ने 70। 100 के बाद कितना असाइन कर दिया हम लोग ने, एडिशनल 70। सो आउट ऑफ 100 70 अलोकेट हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया अपना 30K। सो 30K यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, डैश डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ फ्रॉम फिगर नेम C, it is clearly indicated that we are having free memory, that is 170 to 200, 30K, 230 to 256, 26, and the process will go further on. Now again consider, हम लोग को क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपली क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास फ्री करने वाला कौन है। 5 के बाद फ्री करने वाला कौन है, तो जॉब नंबर 1। तो उसके बाद जॉब नंबर 1 टर्मिनेट होगा, जो आपको फिगर नंबर डी में नेम फिगर डी में किया है।
फिर वापस से कोई तो प्रोसेस डीअलोकेट होगी। क्यों डीअलोकेट होगी? बिकॉज उसका कंप्लीशन टाइम मेंशन था। सो क्या था कंप्लीशन टाइम? जॉब 1 के लिए 10, जॉब 2 के लिए 5, जॉब 3 के लिए 20, जॉब 4 के लिए 8, जॉब 5 के लिए 15। सो जैसे जैसे प्रोसेस आती थी, सिंपली आफ्टर द मॉनिटर पोर्शन इट वाज अलोकेटेड। अलोकेट होने के बाद जैसे जैसे उनका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, वो हिसाब से वो टर्मिनेट होती गई। जैसे टर्मिनेट होती गई, पेंडिंग जॉब थी वो वहाँ पे असाइन होते गए, नहीं असाइन हो सकते तो वो वेटिंग थे। जैसे भी अवेलेबल मेमोरी वहाँ पे हो गई, वैसे ही वो क्या हो गए? अलोकेट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ फिक्स कर दिया क्या कि स्टैटिकली कि ये प्रोसेस के लिए ही ये मेमोरी, ये प्रोसेस के लिए ये मेमोरी नहीं। कभी 60 के ऊपर चली गई तो कभी 50 के जो उससे छोटी है वो उससे नीचे आ गई, कभी 100 के कोई तो लोकेशन पे आ गई। यही क्या है? आपका डायनामिक मेमोरी अलोकेशन और द मेमोरी जॉब शेड्यूलिंग फॉर द MVT। समझा? पहले स्टैटिक में क्या था? हम लोग ने सब कुछ फिक्स कर दिया था और अकॉर्डिंग टू सेगमेंट हम लोग ने अलग अलग क्यू बनाए, और एल्स डिफरेंट सेगमेंट के लिए एक ही क्यू था। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज थे, उसको ओवरकम करना था। इसलिए नई टेक्निक की, साथ ही में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करना था। इसलिए MVT या फिर डायनामिक मेमोरी अलोकेशन हम लोग ने यूज़ किया। इसके बाद देखेंगे डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन में हम लोग फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इजीली मार्क आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछो। टाइम आगे जा रहा है, अभी दिवाली आ गई, इसके बाद या पहले भी शायद आपके एग्ज़ाम हो सकती है। सो बेटर स्टार्ट स्टडी। बुक परचेस करो। मालूम है बहुत जन ने बुक अभी तक नहीं लिया है, लेकिन बुक परचेस करो और पढ़ना चालू कर दो। मेरा लेक्चर कल छोड़ के परसों होगा, ठीक है, क्योंकि वो AICTE का प्रोग्राम है बीच में। पॉसिबल हुआ तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा ही न्यू लेक्चर पोस्ट करने की, या फिर कम लेंथ का तो लेक्चर पोस्ट करने की। थैंक यू।